आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਹਰ ਘਰ ਦਸਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ESIC ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ RT-PCR ਲੈਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ AK पांडे ने कोविड वैक्सीन की खुराक लैण ते जोर दिंदियां कहा, कुछ दिनों से एक ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट, कोरोना के न्यू वेरिएंट के बारे में लोगों में थोड़ी अफरा तफरी मची हुई है। इंडिया में ही नहीं, बाकी देशों में ज़्यादा। इंडिया में अभी तक इसकी कोई केस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये सुनने में आया है कि ये काफ़ी इन्फेक्टिव है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन आपको सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने देश पर और देश के वैक्सीन पर भरोसा कीजिए। हम लोग सारे जो भी इसके लिए होता है, न्यू वेरिएंट के भी अगेंस्ट वैक्सीन पर बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं इंडिया में। हमारे इंस्टीट्यूट फरीदाबाद ESI मेडिकल कॉलेज में भी चल रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवश्य सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को अभी भी अवॉइड करें, स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। अगर वो वैक्सीनेट नहीं है तो उनको वैक्सीन का दोनों डोज दिलवाइए। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, अभी आज के डेट में कोई भी वैक्सीन की कमी नहीं है, पर्याप्त है, सभी वैक्सीन अवेलेबल है। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में अभी भी कई वैक्सीन जो इंडिजिनस वैक्सीन है जिसका ट्रायल चल रहा है, जिसमें बायोलॉजिकली है, स्पुतनिक लाइट है, बूस्टर डोज, पेडियाट्रिक्स वैक्सीन सभी पर चल रहा है। मोहाली ਦੀ सिविल सर्जन डॉक्टर आदर्शपाल कौर ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਮਾਈਕਰੌਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, 5 ਗੁਣਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰਡ ਲੋਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਨਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 에ਅਰ ਪੈਸੰਜਰਸ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ, ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਨੋਮਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ 에ਅਰ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਤੌਰ ਤੇ 5% ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਓਮਾਈਕਰੌਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉਪ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ नहीं मिला, पर ਤਿਆਰੀਆਂ पूरियां ने। एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से पता चला है, जो कई देशों के अंदर काफ़ी सक्रिय है। इसके बारे में अभी तक ये सामने आया है कि इसका संक्रमण रेट जो है, फैलने की जो इसकी गति है बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत थोड़े समय में काफ़ी लोगों को यह प्रभावित कर सकता है। तो सरकार ने एहतियात इसमें बरतने के निर्देश जारी किए हैं। उसके लिए कोविड प्रोटोकॉल्स की जो पालना वो
करवाना सुनिश्चित करना सबसे पहला काम ये है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क लगा के रखें और पब्लिक गैदरिंग में, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं और जो ज़रूरी काम है उसी के अनुसार ही बाज़ारों में निकलें। और तीसरा, अपने हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन ये करते रहें। इसके अलावा जो कोविड वैक्सीनेशन है, जो सिरसा में अभी हम 82% के करीब लगा चुके हैं और सेकेंड डोज जो है 38% लग चुकी है, तो उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं ताकि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से आ सके। और जो ये वेरिएंट है, इसमें अभी तक हमारे पास जो आंकड़ों के हिसाब से फॉरेन से जो लोग आ रहे हैं, सरकार उनका एयरपोर्ट पे ही कोविड टेस्ट कर रही है, उसके उपरांत ही उन्हें आने दिया जा रहा है। और अभी तक जिला सिरसा में 68 के करीब 68 लोग फ़ौरन से आए हैं, वो सभी अभी नेगेटिव हैं। अभी उनकी 5 दिन बाद दोबारा से सैम्पलिंग और उनके परिवारजनों की भी सैम्पलिंग दोबारा से करेंगे। उनके ऊपर हम नज़र रखेंगे विशेष, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है फ़ौरन से ही यहाँ एंटर कर सकता है। अभी तक जिला सिरसा में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है जो ओमिक्रॉन या अदरवाइज़ कोई कोविड पॉजिटिव केस हो। तो अभी हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी तरह के केसेस बढ़ते हैं तो हम उन्हें संभाल सकते हैं। पिछली कोविड वेव की तुलना में सरकार द्वारा अच्छी तैयारी करवाई गई है। उसके अंदर हमारे बेड्स की संख्या भी हमने बढ़ाई है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, वो उसके अंदर स्टेबलाइज़र का जो इशू था वो भी हमारा स्टेबलाइज़र भी लग चुके हैं, तो अभी पूर्ण रूप से फंक्शनल है। जो हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे वो हमारे पास पहले कम थे, अब उनकी संख्या भी काफ़ी 500 के आसपास हमारे पास है। और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हमारे पास 200-250 के आसपास हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं पूरे ज़िले में, 200 के करीब। तो इस तरीके से हम पूर्ण रूप से बिल्कुल तैयार हैं। पीपी किट्स, दवाइयाँ, ग्लव्स, किसी भी तरह की कोई जो भी सामान इसके लिए चाहिए, इस वायरस से निपटने के लिए, वो हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हर घर दस्तक प्रोग्राम तहत पंजाब ਅਤੇ हरियाणा 'ਚ बड़ी तेज़ी ਨਾਲ कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे ਨੇ। अंबाला ਦੇ सिविल सर्जन डॉ कुलदीप ने अंबाला जिले 'ਚ हर घर दस्तक प्रोग्राम की प्रगति ते चानना पाउंदियां दस्सिया। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हमने आज तक 15,75,000 व्यक्तियों को टीकाकरण टोटल डोज लगाई जा चुकी हैं और इसमें हमारी 80% से ऊपर टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है, यानी दोनों डोज लग चुकी हैं। और 100% ऐसी वो है पॉपुलेशन है जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, उसका सारा का सारा हम टीकाकरण कंप्लीट कर चुके हैं। और अगले हमारे 2 हफ्ते में हमारी प्रयास ये है अगर हम ये टीकाकरण कंप्लीट टीकाकरण यानी जिसको दोनों डोज लग जाए वो हम 95% तक ले जाएं। भिवानी के मुख्य मेडिकल अधिकारी डॉ रघुवीर शांडिल्य ने दस्सिया। लिए स्वास्थ्य विभाग ने जैसे कि प्रधानमंत्री जी के आग्रह के अनुसार हम हर घर दस्तक में हमने टीम बना रखी है। 30 टीम हमने शहर की बनाई है और 150 टीम हमने फील्ड की बनाई है। वो टीम हर दिन कम से कम 100 घर जा करके चेक करेगी और उसमें जो कितने व्यक्ति हैं 18 से ऊपर, कितने पहली डोज लगी है और कितने पेंडेंसी है, कितनी सेकंड डोज की पेंडेंसी है, उनको वैक्सीनेटर वही हमारे साथ होगा, वो उसको वैक्सीनेट करेगा। भारत पाकिस्तान विचाले 1971 विच होई जंग दे लगभग 50 साल पूरे होण ते पंचकूला तो साडी पत्रकार ने सेवा मुक्त कर्नल LGS गिल नाल गलबात कीती तां उन्हां इस जंग दीयां यादां ताज़ा करदियां दस्सिया। 1971 वॉर जो शुरू हुई थी, ये लड़ाई 3 दिसंबर को शुरू हुई थी, जिसके अंदर बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था। इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न सेक्टर के अंदर अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई के दौरान जो कि 3 तारीख को शुरू होकर 16 दिसंबर तक उन्होंने बांग्लादेश एक नया मुल्क बना दिया था। इस लड़ाई के अंदर ये सबसे दुनिया के इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसने कि 16 दिन के अंदर एक मुल्क बना दिया, 13 दिन के अंदर। ना ही इस साउथ एशिया की ज्योग्राफी बदली कर दी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इससे भी अहमियत की बात यह है कि 93,000 प्रिजनर्स को इस लड़ाई के दौरान उनको बंदी बनाया गया। दुनिया में लड़ाई के इतिहास में इतनी बड़ी जीत और इतने अधिक 93,000 प्रिजनर्स को कभी भी बंदी नहीं बनाया गया। ये इंडियन आर्मी की ऐतिहासिक जीत थी और इसके दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन था वो था
एयरबोर्न ऑपरेशन जो कि टंगेल में एक पैरा बटालियन को गिराया गया। एयरबोर्न ऑपरेशन किए जाते हैं लड़ाई की रफ्तार को बढ़ाने के लिए और दुश्मन की लड़ाई की क्षमता को कम करने के लिए। जब पाकिस्तान की फौज के ऊपर दबाव था, जमालपुर में वो मेघना दरिया के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे, इंडियन आर्मी का प्रेशर उनके पास था। 11 तारीख को एक 2 पैरा एक पूरी बटालियन को टंगेल एरिया में ड्रॉप किया गया। रिवर लोहजांग के ऊपर एक दरिया को पकड़ा गया, उस ब्रिज को पकड़ा गया। कैप्चर करने के बाद जब जमालपुर से पाकिस्तान की 93 ब्रिगेड वहां से विड्रॉ करके आई तो यहाँ पर उनको ट्रैप कर लिया गया। इस दे नाल ही समाचार दर्शन दा ए अंक खत्म हुंदा है। पेशकश अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, पेशकारी सहायक सुखविंदर सिंह।